Hello everyone, welcome to CMS Digital Classrooms. In the previous video, we have learned the basic about the unitary method and we have learned some questions also. Okay, so now let's discuss few more questions related to the unitary method related to your exercise 10C. Okay, so in the previous video, what we learned, we want to revise once first that the basic thing about the unitary method. In unitary method, we used to find the value of unique quantity first to find the value of many. This is the basic thing about unitary method. We have learned two concepts of unitary method. One, if we want to find the value of many, then we will multiply. And then if you want to find the value, if you want to find the value of many, then we will multiply. If we want to find the value of one unique thing, then we divide. Okay. We also discussed about the two types of questions in unitary method. One is the direct variation, another is the inverse variation. So direct variations में directly वो inverse मतलब directly vary करता था, ये बढ़ाओगे वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस बढ़ाओगे मतलब क्वांटिटी बढ़ाओगे प्राइस बढ़ जाएगा, या वैल्यू बढ़ाओगे उधर का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाता है डायरेक्ट में। इनवर्स में क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। इनवर्स में इसका वैल्यू बढ़ाओगे तो उधर का वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। इधर का वैल्यू घटाओगे उधर का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ऑपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको बोला जाता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग व्हिच वी हैव लर्न एंड सम क्वेश्चंस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. नाउ वी विल डिस्कस few more questions related to that. Okay. So, if we are talking about first question of exercise 10C, it is asking the cost of 14 meter of cloth is 1890 rupees. So, find the cost of 6 meter of cloth. So, very easily we can say here the cost of 14 meter of cloth is given 1890 rupees. यहाँ पे हमारा जो है हाँ 14 मीटर क्लॉथ्स का जो प्राइस है वो दिए हुए हैं। अब 14 मीटर क्लॉथ का प्राइस अगर दिए हुए हैं, हमें 6 मीटर क्लॉथ का प्राइस निकालने हैं। सो यू कैन सी हियर इफ 14 meter cloth price cost 1890 rupees. So 1 meter cloth will cost 1890 divided by 14. So this will cost, that means 1 meter of cloth is costing 135 rupees. So what will be the cost of 6 meter of cloth? The cost of 6 meter of cloth will be 810 rupees. So this is the basic concept of the unitary method. First we are finding the cost of one unique thing and then we are finding the cost of many by multiplying, and first by dividing the value of unique and then by multiplying the value of as much as you want. Okay, same next question it is asking if the cost of a dozen of soap is 285 rupees and 60 paise. So what will be the cost of 15 such soaps? So here you have to understand about one dozen, what the one dozen means. So we are already aware about that कि one dozen means 12 count, right? तो एक डजन का मतलब हमें पता है कि 12 काउंट होते हैं। तो अगर वन डजन का कॉस्ट होता है 285 रुपीज़ एंड 60 पैसे, सो द कॉस्ट ऑफ वन सॉप विल बी 285 रुपीज़ 60 पैसे डिवाइडेड बाई 12. ओके, so then the cost of 15 soap will be 15 multiply 285 decimal 60 divided by 12. So this is the very important thing to understand कि वन सॉप का निकालना है तो डिवाइड करना है, 15 सॉप का निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो किए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के केस में, यहाँ पे दिस इज़ द इजी प्रोसेस, यू कैन डू लाइक दिस ओनली। इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट ये है कि हमारे यहाँ पे जो एक साथ हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमको एक साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ईजी होता है, ठीक है। सो हियर we have multiplied also together and divide also together, so it will be easy to cancel out, and after cancelling you will get 357 rupees. So 357 rupees will be the cost of 15 sop. Okay, so in the same way, if you talk about question number 3 is asking if 9 kilogram of rice cost
327 rupees and 60 paise, what will be the cost of 15 kilogram of rice? So in the same way as like the question number 1 and 2 we have done, first we will find the cost for 1 kilogram. So then we will find for 15 kilograms. So 1 kilograms cost will be 327.60 divided by 9, and then 50 kilograms cost will be 327.60 by 9 multiply 50. तो इस तरह से आफ्टर मल्टीप्लाइंग you will get 16380 divided by 9, and if you cancel out this, answer will come 1820 rupees. So this is why the cost of 50 kilogram of rice will be 1820 रुपीज़. ओके, तो वेरी इजीली आप लोग को कोई भी इस तरह का यूनिटरी मेथड्स का क्वेश्चंस अगर रहता है तो आप इसका प्रोसेस फॉलो करके कर सकते हैं कि पहले तो हम यूनिट क्वांटिटी का निकालेंगे, और यूनिट क्वांटिटी का निकालने के बाद हम जो है जितना रिक्वायर्ड नंबर है उसका निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी का हम लोग ने निकाला है बाय डिवाइडिंग, एंड हियर 50 kilograms का निकाला है by multiplying. Okay, so if you divide this, answer will come this much. Okay, let's talk about question number 4 now. Question number 4 is asking, yes, question number 4 is asking about that if 22.5 meter of uniform iron rod weighs 85.5 kilograms, so what will be the weight of 5 meter of the same rod? So 22.5 का जो है weight दिया हुआ है. So first you have to find the weight of 1 meter. So weight of 1 meter will be 85.5 divided by 22.5, क्योंकि 22.5 का 85.5 है. तो इस तरह से हमारा 5 मीटर का भी हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 427.5 डिवाइडेड बाई 22.5. उसके बाद इसको कैंसिल आउट करके डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट द आंसर 19 किलोग्राम. सो दिस इज हाउ द वेट ऑफ 5 मीटर ऑफ आयरन रॉड विल बी 19 किलोग्राम. ओके, so now if you are talking about the next question number 5 is asking, if 15 tins of the same size contains 235 kilogram of oil, so how much oil is there be in 10 such tins? Okay, so 15 टीन्स में अगर इतना वेट है तो 1 टीन्स में कितना वेट है वो निकालने हैं बाय डिवाइडिंग, and then by multiplying we can find for 10 tins also. Okay, so 10 tins will be multiplied by whatever the oil contains in 1 tin. So 1 tin में contains है 234 divided by 15, so 10 में हो जाएगा 234 divided by 15 multiply 10. अब इसको कैंसिल आउट करने के बाद हमारे यहाँ पे बचेंगे 156 किलोग्राम. सो 156 किलोग्राम विल बी द required amount of oil which is contained in 10 tins. Okay, which will be contained in 10 tins. तो इस तरह से this is how all the unitary methods problem you can solve by yourself. Okay, so let's see the next question, which is question number 6. Question number 6 is asking कि if 12 liter of diesel is consumed by a car in covering a distance of 222 kilometer, तो 12 लीटर डीजल लग रहा है 222 किलोमीटर जाने के लिए. सो हाउ मच किलोमीटर विल इट गो इन 22 लीटर ऑफ डीजल? तो वेरी इजीली कि 1 लीटर में कितना दूर जा रहा है वो निकालेंगे पहले. तो 1 लीटर में जो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, और उसके बाद हम लोग का 22 लीटर में कितना जाएगा वो बस मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं. तो डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 22 लीटर डीजल विल बी 22 मल्टीप्लाई 222 डिवाइड बाई 12. अब इसको कैंसिल आउट आप करोगे तो आपका आंसर जो होगा 407 किलोग्राम आएगा. सो किलोमीटर आएगा. सो 407 किलोमीटर ये ट्रेवल करेगा 22 लीटर ऑफ डीजल में. ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं भी समझने में दिक्कत होता है सो प्लीज़ आस्क. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन अगेन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन ऑनलाइन क्लासेस और इन द नेक्स्ट वीडियो अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो. ठीक है, बट आई होप दिस ऑल क्वेश्चंस एज दिस ऑल क्वेश्चंस आर सिमिलर, सो सब सेम ही हैं नियर अबाउट, तो आप इसको अपने से भी सारा जो है बाकी बना सकते हो. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी इज देयर इज चार्जिंग 540 rupees to carry 20 tons of weight, 25 tons of weight. 25 tons of weight के लिए हमारा जो है ये चार्ज कर रहे हैं 540 रुपया. ठीक है, तो व्हाट विल बी द चार्ज टू कैरी 35 टन? सो 1 टन्स के लिए कितना है, 1 टोनिस के लिए कितना है वो हमें निकालने हैं.
ठीक है। 1 के लिए कितना है 540 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा, सो 35 के लिए भी हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल विच वी हैव लर्न। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 is asking 4.5 gram of an alloy of copper and zinc contains 3.5 gram of copper. What weight of copper will be there in 18.9 gram of alloy? ओके तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, देखो ये हमारे रेशियो से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग को जो है एक जो अननोन क्वांटिटी है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कॉपर का जो वेट है वो x ग्राम है, क्योंकि कॉपर का वेट हमारे यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल बी देयर इन 18.9 ग्राम ऑफ अलॉय, ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है 4.5 ग्राम का अलॉय में है 3.5 ग्राम का कॉपर। तो ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका मतलब अलॉय का और कॉपर का जो रेशियो है, ठीक है, वो 4.5 एंड 3.5 है। और उसी के बाद जो हमारा दूसरा रेशियो है व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल बी देयर इन 18.9 ग्राम ऑफ अलॉय। सो 18.9 में जो है एक्स वैल्यू होगा, मान लेते हैं, क्योंकि दिस इज अननोन वैल्यू वी वांट टू फाइंड आउट। अब हम लोग ने पढ़ा है इसमें होता है प्रोडक्ट और मीन्स। तो पहले हम लोग समझते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होता है। मीन्स और एक्सट्रीम का मतलब होता है यहाँ पे हमारा रेशियो और प्रोपोर्शंस में जो वैल्यूज़ रहता है, प्रोपोर्शंस में हमारा चार वैल्यू रहता है, 2 रेशियो को लेके प्रोपोर्शंस बनता है। तो ये जो आउटर वैल्यू होता है, ये बाहर वाला जो वैल्यू होता है, ये 4.5 और x, इसको हम लोग का बोला जाता है एक्सट्रीम्स मतलब बाहर वाला वैल्यू जो 2 है। और ये जो 2 बीच वाला होता है, यहाँ पे 3.5 और 18.9 है, इसको बोला जाता है मीन्स। ओके, तो यहाँ पे मीन्स हमारे यहाँ पे 2 है, एक 3.5 है और एक 18.9 है, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स है रिलेटेड टू द प्रोपोर्शंस, एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। और यहाँ पे जब भी एक्सट्रीम्स और मीन्स का प्रोडक्ट जो होगा, वैल्यू होगा, तभी हम लोग मतलब वैल्यू सेम होगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शंस। ओके, तभी हम लोग बोलेंगे ये नंबर्स प्रोपोर्शंस है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब हो गया 4.5 मल्टीप्लाई एक्स, ओके, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब हो गया 3.5 मल्टीप्लाई 18.9, ओके। तो x का वैल्यू हो जाएगा, इसको इधर लेकर आके डिवाइड कर देंगे तो 4.5 को डिवाइड कर देंगे तो x हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 18.9 डिवाइडेड बाई 4.5। उसके बाद इसको कैंसिल आउट करके हमारे यहाँ पे 14.7 ग्राम बचेंगे। तो 14.7 ग्राम विल बी द वेट ऑफ कॉपर। ओके, सो इसमें समझने का कुछ है नहीं, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये आप अगर समझ गए हो देन यू कैन डू very easily this type of questions. Okay, now let's move to question number 9. Question number 9 is asking 35 inland letters cost this much, so how many such letter can be buy for? This is also related to the ratio you can do by using that type of cross multiplications also, and you can do by finding the for rupees 1 also how much it will be in rupees 1। तो यहाँ पे आप रेशियो के हिसाब से अगर करना चाहते हो 35 his lens will cost this much means 35 डिवाइडेड बाई 87.50 हो जाएगा, एंड देन x कंसिडर करोगे x डिवाइडेड बाई 315। तो उसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू जो भी निकलेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, वो भी कर सकते हो, यहाँ पे फाइनली यही आंसर आएगा हमारे यहाँ पे जो दिखाया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर बात करें, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में इस मेथड पे अगर करने जाएंगे तो नंबर ऑफ इनलाइन लेटर्स हुज टोटल कॉस्ट इज दिस मच। सो टोटल कॉस्ट जो है इतना 87.50 में हम लोग 35 खरीद सकते हैं, 35 परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 रुपये में कितना परचेज कर सकते हैं ये पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है 315 रुपीज़ में कितना निकालना है, ये कितना मिल सकता है ये निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग को देखना है कि वैल्यू किसका निकालना है। वैल्यू अगर यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ रहा था कि सपोज दिया हुआ रहा था कि
रुपीज़ की जगह पे कुछ और दिया रहता है कि कितना हम लोग ये खरीद सकते हैं इनलाइन लेटर्स। ओके, लेटर्स कितना खरीद सकते हैं वो अगर दिया रहता है तो उसका हिसाब से हम लोग एक लेटर्स का कितना प्राइस है वो निकालते। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 315 में हम लोग कितना परचेज कर सकते हैं। तो 315 में कितना परचेज कर सकते हैं वो निकालने के लिए पहले हम लोग को निकालना है कि 1 रुपये में हम लोग कितना परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 1 रुपये में परचेज कर सकते हैं 35 का डिवाइडेड बाई 87.50, क्योंकि 87 में हम लोग 87 रुपीज़ 50 पैसे में हम लोग 35 खरीद सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड फॉर 315 ऑल्सो। 315 में हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई करके जो भी होगा उसके बाद कैंसिल आउट करेंगे तो 126 आंसर आएगा। तो 126 लेटर्स जो है हम लोग खरीद सकते हैं एट द रेट ऑफ 315 रुपीज़। हमारे पास अगर 315 रुपीज़ है 315 रुपये में हम लोग 126 लेटर्स जो है परचेज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो है हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर बात करें, 10 is asking cost of 4 dozen of banana is this much, so how many bananas can be purchased for this। so यहाँ पे भी दिया हुआ है कि 6 रुपीज़ 50 पैसे में कितना परचेज कर सकते हैं। तो पहले हमारे यहाँ पे डजन समझना पड़ेगा। डजन मतलब हम लोग को पता है कि 1 डजन में कितना होता है 12 काउंट होता है, तो 4 डजन में हो जाएगा 48 काउंट। ओके, तो इसका मतलब हम लोग 104 रुपीज़ में 48 बनाना परचेज कर सकते हैं। तो 1 रुपीज़ में हम लोग कितना बनाना परचेज कर सकते हैं 48 डिवाइडेड बाई 104। यहाँ पे 104 थोड़ा सा इधर लिख लेना आप लोग, दिस बिकम डिस्प्लेस्ड, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है तो इसको यहाँ पे लिख लेना सही से, यहाँ पे इस पे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 1 रुपया में हम लोग इतना परचेज कर सकते हैं। तो 1 रुपया में अगर इतना परचेज कर सकते हैं तो हमारे यहाँ पे जो है 6.50 रुपीज़ में कितना परचेज कर सकते हैं। जो भी 1 रुपया में परचेज कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई दैट। ओके, तो यहाँ पे ये 104 अगेन यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया है, इसके नीचे लिख लेना सही से आप लोग, इसका नीचे यहाँ पे और इसको भी इसका नीचे, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग 6.50 रुपीज़ में मतलब 6 रुपीज़ 50 पैसा में हम लोग 3 बनानाज परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से वैल्यू कुछ और भी हो सकता है, वैल्यू कोई भी दिया हुआ रहे, कोई भी प्राइस दिया हुआ रहे, कितना भी डजन दिया हुआ रहे, तो प्रोसेस विल बी सेम, प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है। इसी तरह से हम जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये हमारा क्या बोल रहा है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 11 इज आस्किंग द कॉस्ट ऑफ 18 चेयर्स इज दिस मच, सो हाउ मेनी चेयर्स कैन बी बॉट फॉर दिस। सो सेम थिंग, पहले हम लोग 1 रुपीज़ में कितना चेयर परचेज कर सकते हैं वो निकालेंगे। तो 1 रुपीज़ में हम लोग कितना कर सकते हैं, जो भी 22,770 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं उसका डिवाइडेड बाई 22,770 उसको डिवाइड करके जितना होगा उसका 1 रुपीज़ में परचेज होगा। तो अब 10,120 में कितना परचेज कर सकते हैं, जस्ट मल्टीप्लाइंग वट एवर वी कैन परचेज इन 1 रुपीज़। ओके, एंड आफ्टर देन आफ्टर कैंसिल आउट दिस यू विल गेट 8। so that means 8 chairs we can brought at the rate 8 chairs we can bought at the rate of or at the price of 10,120 rupees. Okay, so this is how you can solve question number 11. Coming to question number 12. 12 is asking a car traveling 195 kilometer in 3 hours. So first you have to find that how long it will take to travel 520 kilometer. तो 520 किलोमीटर का निकालने के लिए पहले हम लोग 1 किलोमीटर का निकालेंगे। 1 किलोमीटर का हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई this much 3 divided by 195 hours. Okay, and then we can find for 520 hours also how much it will, I mean 520 kilometer also how much it will cover. तो 1 किलोमीटर का निकालेंगे तो 520 का भी निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार विल इट रीच इन 7 hours विद द सेम स्पीड। अब 7 आवर्स का निकालने के लिए पहले हम लोग का 1 आवर्स का निकालना है कि 1 घंटा में कितना ट्रेवल करता है, तब हम लोग 7 का निकाल सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस जो है दिया हुआ है, तो दोनों में से पहले तो आपको 1 किलोमीटर वाला निकालना है और उसके बाद आपको जो है फर्स्ट पार्ट में किलोमीटर वाला निकालना है, सेकंड पार्ट में कितना घंटा में 7 आवर्स में कितना ट्रेवल कर सकता है। एक बार 1 यूनिट का निकाल के और एक बार 1 किलोमीटर का निकाल के। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस 2 क्वेश्चंस, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 and 2 of exercise number 2 of question number 12. If we are talking about question number 13, 13 is also similar to question number 12 only. एक लेबर है जो कि अर्न कर रहा है 1980 रुपीज़ इन 12 days,
12 दिन में इतना अर्निंग कर रहा है तो 7 दिन में कितना करेगा, तो एक दिन का निकालेंगे पहले, फिर 7 दिन के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद कितना दिन में वो 2640 अर्न करेगा वो निकालने के लिए पहले एक दिन में कितना अर्न कर रहा है वो निकालेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 1980 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग 2040 से मल्टीप्लाई करके जो है ये निकाल सकते हैं 2640 कितना दिन में कमाएंगे, 16 डेज में कमाएंगे, ठीक है। So this is how you can do the rest of all questions of this exercise. Okay, so if you not able to understood the rest of all questions, we will discuss in our next video. Okay, thank you, have a good time, take care everyone, and bye bye.